Hey guys, welcome to another episode with me, Shashank Goduppa. And in today's Connecting the Dots episode, we have a very special guest, and that is Mr. Ish Mohit sir. Now, Ish, first of all, I want to tell all the people in the audience that I am personally a very big fan of you, and I really love the research that you do in the YouTube space. Right? First of all, I feel you're also the one of the best researchers in India, and the amount of deep dive research that you do, even I love it so much that I download all your videos and start watching it. Right? And this is something I think the audience can also resonate. So, in today's video, first of all, thank you for giving your time. No worries. No, And thank you. in today's video, I want to understand a different side of you. Okay, because I know you for a long time, but I want to understand a different side of you. I want to know how you do your investment framework, your personal investment framework. What are some companies that you have picked in the past that has worked really well? What is a company you picked in the past that has not worked really well, and what have you learned from it? And then I want to talk a little bit about some new themes that you're looking at, or some interesting themes that you're looking at. And then finally, as you read a lot of books, and I've seen it in your office as well, one or two books that would really help a retail investor. So this is the whole journey that we will go. But the first question is, what is your investment framework? And again, thank you for being here. Thank you for the warm introduction. And thank you so much for the compliments. But we try to do our best when it comes to research, because at the end, the videos that we put out is nothing but how I will try to learn about an industry. Yeah. It's just a representation of that. Of course. So I think coming to your point, key on how do we go about picking stocks or what the framework is that the framework is, I just call it the TVGP framework. TVGP. TVGP. Okay, ये क्या है? So TVGP क्या है? It's like theme, Okay. valuation, growth, and promoter. Okay, very interesting. That's a framework which I personally follow. Hmm. तो इसके examples देता हूँ, because more and more examples then we'll sort of in जो framework को reverse engineering कर लेंगे उससे. Okay. For example, I think 2 years ago there was this business MCX, multi commodity exchange, Yes. right? अगर आप 2 साल पहले MCX का मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस परफॉर्मेंस देखते तो यू वुड हैव सीन कि देयर वाज नथिंग हैपनिंग इन द पीएनएल स्टेट. बट उससे कुछ टाइम पहले ऑप्शंस का बिजनेस लॉन्च करा था एमसीएक्स ने, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का. तो फ्यूचर्स तो ठीक था, बट ऑप्शंस में बहुत तेजी से ग्रोथ आ रही थी. तो एक्चुअली में जो अंडरलाइंग डेटा था एमसीएक्स का, दैट यू कैन स्टिल गेट ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वेबसाइट से आपको मिल सकता है. करेक्ट. तो दैट वाज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 400 और 500%. वाओ. कभी 500% ग्रोथ आती थी ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम में, कभी 600% आती थी. बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड मार्केट्स दैट यू सी इन द वर्ल्ड टुडे, दे शो दैट की जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं या जो कमोडिटी मार्केट्स हैं, दे आर वेरी वेल पेनिट्रेटेड. करेक्ट. बट इंडिया में इक्विटी डेरिवेटिव्स का ट्रेंड था, कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ट्रेंड अभी आ रहा है. बट इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड मार्केट्स इन द वर्ल्ड, इफ यू सी, द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट माइट बी एज बिग एज द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, इफ नॉट बिगर. Absolutely. Because as the country develops, more and more businesses need hedging requirements or hedging mechanisms. And also this is somewhere कि जहाँ पे सेबी का जैसे स्क्रूटनी है on the equity derivatives, ऐसा स्क्रूटनी अभी commodity derivatives पे नहीं है. So this was a space which was a bit less regulated, and options का approval आया था, and they launched that, and they saw this explosion in volumes that was happening. So there's a funny story to it. Actually, I was tracking this business since last 4 years. MCX. And अभी इस बिजनेस में ना एक सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन था. So this was a company which was originally owned by 63 Moon Technology. I've heard this name. This is 63 Moon किसका है? It is a listed company as well? It's a listed company. तो इसके जो नज़ारा का है क्या? नहीं नज़ारा का नहीं है. तो इसके जो प्रमोटर थे, he started MCX also, but he got into regulatory trouble. Okay. And then what he did, he licensed the software part to MCX, and MCX used to pay a license fee to 63 Moons. Wow. Okay. But MCX decided कि now we will migrate our software vendor from 63 Moons to TCS. Okay. राइट. अब जैसे IEX है, तो IEX ने क्या करा था, उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर ही खरीद लिया था, तो उन पे प्रॉब्लम नहीं था. बट MCX ने बोला माइग्रेट करेंगे. नाउ सी, इट इज वन थिंग टू गो इनटू अ प्लेन व्हेन इट इज स्टैंडिंग, एंड इट इज अ डिफरेंट थिंग टू चेंज द पार्ट्स ऑफ द प्लेन व्हेन इट इज मूविंग. करेक्ट. Wow. And just think about an exchange where you put an order और आपका order execute ना हो. There are bugs in the system. How difficult it is. Big risk. Big risk, right? But what happened 2 years, I was tracking this, I think this was
2023 सितंबर या अक्टूबर की बात होगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो फनी इनफ व्हाट हैपेंड कि इनका माइग्रेशन जो था, मतलब इट वाज सपोज टू गो लाइव बाय Q4 of FY23, if that's the correct date, but what would used to happen कि जब भी लाइव जाने वाला होता था, some bugs used to come, Oh God. तो एक्सटेंड होने लग गया। हाँ. तो जैसे ही एक्सटेंड होता था तो 63 मून से इनका वो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टाइप था, तो दे हैड टू पे बेसिकली रॉयल्टी, और वो हर बारी रॉयल्टी बढ़ाते जा रहे थे, कभी 40%, कभी 50%, कभी बीच में तो आई थिंक 200+ करोड़ का उन्होंने लिया उनसे। Oh my God. तो उस चक्कर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिप्रेस दिख रही थी MCX की। But the question was whether this is a permanent problem or this is a one-time temporary problem. तो अब ज्यादा ट्विटर पे जाके देखता था MCX का, people were abusing MCX like anything, Yes. because they were putting orders and orders weren't being executed. Yeah. But underlying data was good. Option revenues were exploding. Option volume was exploding. So then what happened is that all of a sudden people stopped abusing on Twitter. Okay. So that was a signal. And glitch was gone. तो दे TCS पे माइग्रेट करके पर बग्स आ रहे थे। तो पहले तो लोग लिख रहे थे, बट देन पीपल दे स्टॉप पोस्टिंग ऑन MCX अबाउट MCX कि MCX में ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। सो द ग्लिचेस वर गॉन। इट एंड बिकॉज द ग्लिचेस वर गॉन, तो व्हाट हैपेंस कि अभी सब गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, सब क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, राइट? गोल्ड सिल्वर की ज्यादा बात कर रहे हैं बिकॉज ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज हाइपर वॉलिटिलिटी, द वॉल्यूम्स ऑन द कमोडिटी एक्सचेंज एंड्स अप एक्सप्लोडिंग। तो एक्चुअली में जब लिया था तब तो अर्ली 20s की पी मल्टीपल पे था, द मल्टीपल रिलेटेड टू 65-70 टाइम्स। Oh my God. Okay. Because the theme was really good. Theme was that of exchanges, a monopoly business. Valuations were cheap, early 20s P. Growth triggers were there. New product introduction by the example of options. Option trading volume was exploding. Promoters में it was an institutionally owned company. Right, तो institutionally owned company में governance अच्छी रहती है. Right, and cash flows were always solid. Yeah. Right, and then also the chart started turning. So it entered a stage 2, early stage 2 it entered. Got it. Right, and ये problem भी solve हो गया। तो new product, operating margin, operating leverage, and faster growth. Now that growth is getting reflected in the P&L statement. Correct. And now the stock is flying. Now the stock has flown like anything. But इसमें भी केस स्टडी है कि एक्चुअली में जब लिया उसके बाद तो like did really well over a 1 year period of time and went to 65, 70, 75p. Then I actually ended up selling the stock. Then there was a correction, and now again it has started doing well. Wow. So I have a question here. If a normal person has to learn about the 63 moon tie-up, where did you find it? Was it in like a investor presentation, conference call? आम आदमी को अगर ढूंढना है तो कैसा करेगा? सब कॉन कॉल और BSc नोटिफिकेशंस पे। So पढ़ना पड़ेगा लोगों को। मतलब क्या, मतलब BSc नोटिफिकेशन ट्रैक करनी है आपको। एंड एक्चुअली में क्या है कि लोग रियल एस्टेट लेने जाते हैं इंडिया में, दे डू ऑल टाइप ऑफ डिलिजेंस एंड चेक्स। करेक्ट। अब स्टॉक लेने जा रहे तो किसी ने कहा खरीद लिया, ऐसे तो होता नहीं है। करेक्ट। सो पढ़ाई करो, पढ़ना तो चाहिए ही ना, बिकॉज द थिंग इज कि एट द एंड it is simple algebra if you think about. So do you think people today only look at the P&L balance sheet little bit on Twitter and make thesis and analysis of a company? मतलब I think a lot of retail investors have started becoming smarter. Like तो मतलब मैं भी बहुत सीखता हूँ, मतलब जैसे अगर ट्विटर पे भी कहीं देखो तो कई लोग बहुत अच्छे हो गए एक्चुअली में। तो जो पहले मेरा भी एक कंसेप्शन था रिटेल इन्वेस्टर्स में, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। Wow. Because a lot of them have started putting the hard work in. A lot of them have started learning about the business because at the end ये simple algebra ही है। algebra क्यों है ये? algebra में क्या variables होते हैं, राइट? तो एट द एंड आप कंपनी को पढ़ो तो वेरिएबल्स ही होते हैं। अगर मेरे को किसी कंपनी को एक्सप्लेन करना है तो आई कैन डू इट इन 1 सेंटेंस। तो MCX में क्या था, इट्स अ कमोडिटी एक्सचेंज विच इज एन अ मोनोपोली, टेम्परेरी प्रॉब्लम थी और टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या तो अगर किसी और बिजनेस को एक्सप्लेन करना है तो ऐसे में एक बिजनेस होता था न्यूलैंड लैब्स करके। करेक्ट। तो न्यूलैंड लैब्स में अगर सिंपली एक्सप्लेन करूं तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा था। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि अगर आप 100 रुपीज की सेल करते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ द सेल्स आपकी हाई मार्जिन प्रोडक्ट से होगी, कुछ लो मार्जिन प्रोडक्ट से होगी। बट इवेंचुअली अगर हाई मार्जिन प्रोडक्ट की सेल बढ़ते जाएगी तो मार्जिन विल कीप गोइंग अप। करेक्ट। तो वहां पे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल टू ट्रैक था। तो इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो एक्चुअली में ये कंपनी तो 2010 से दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू CDMO बिजनेस। ओके। जो ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का बिजनेस है, तो 2010 से स्टार्ट करें इन्होंने, और जनरली इस बिजनेस का जेस्टेशन पीरियड 10 इयर्स का है। ओके।
बिकॉज आप मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इनोवेटर्स के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सम मॉलिक्यूल्स डू वेल, सम मॉलिक्यूल्स फेल, बट जनरली इट टेक्स 7, 8, 9 to 10 years to get to crack this business. Close to 2019, 2020 के आसपास, I think big credits to Unseen Value sir also, Sajal sir also. So he made a lot of people aware 2019, 2020 में इस business में product mix change हो रहा है. तो originally तो COVID led rally आई बहुत सारे API stocks पे, right? And then 2021 में the rally died down. A lot of these stocks corrected 50, 60%. Correct. But actually में underlying business देखते तो product mix change दिख रहा था. And this product mix change actually started coming to forth in 2023. Okay. तो 2023 में CDMO business का सेल जो 20-25% था वो 40-45% हो गया. And high margin. And high margin. अब लोग जो stocks के believer भी थे वो कहते हैं sustainable नहीं है. वही लोग ये कह रहे थे क्योंकि everyone has seen these falls starts. Yeah. Then दूसरा क्वार्टर हो गया सेम हुआ, तीसरा क्वार्टर हो गया सेम हो गया, Okay. Yeah. then चौथे क्वार्टर में भी सेम आ गया. Stock did well. But the valuations didn't basically re-rate. Yeah. मतलब प्रॉफिट ग्रोथ के चक्कर में स्टॉक डिड वेल, बट Correct. पी का री रेटिंग नहीं हुआ था. So it was still not going up that much. इट वाज गोइंग अप बिकॉज द प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100%, 150 to 100%. Fundamental led growth था. फंडामेंटल लेड ग्रोथ था, बट परसेप्शन में अभी था कि यार ये वन ऑफ है. ये गिरेगा कल वापस टाइप. हाँ, तो मैनेजमेंट ने कहा कि FY24 में भी नंबर्स बहुत बढ़िया आएंगे. एंड यूजुअली इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. तो एक्चुअली में I had like in this talk I was there in 2020, 2021 के आसपास, but जब वो drawdown आया था तो I got out of it because of risk management. But then because this story again started, so you had to change your mind because data was changing. Because this is a sport where you should have I think there is no embarrassment in investing. Yeah. Zero Because ego. इसमें ego आपको zero रखनी है. Data changes, you change your mind, right? Because this is not like any other subject जहाँ पे everything is cast in stone. A lot of things are probabilistic over here, Correct. right? तो यहाँ पे company में data was changing rapidly and people were still not believing because it was still reflecting in the PE multiple. It was at early 20s to mid 20s. Similar companies were trading at 60, 70, 80 PE. So that was a point of time where one could have really studied the business, thought about it, ki whether this is a one-off earnings or is sustainable in nature. And actually, me today trades at a 158 times PE ratio. 158 times P ratio. Right, because earnings are depressed. I think this year earnings will grow. Normalize भी करो तो 70-80 PE ratio पे. So just think about it कि PE re-rating भी 3x हो गया. Why मतलब not? PE itself went 3 times. Why From 24-25 to normalized earnings पे 70-80 times. बट ये एक बीच में ये भी आया था ना कि every company was calling themselves a CDMO company. I think not just people but companies, even in their presentation, some, I remember you posted something on Twitter where you said some companies are saying that we are not that type of CDMO, we're a different type of CDMO, we're not the molecule type, we're doing something else. So ये क्यों हुआ था and क्या हुआ था ये टाइम पे? तो बेसिकली वो एक जेनेरिक CDMO होते हैं जो एक जेनेरिक ड्रग्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और एक पेटेंटेड वाले होते हैं कि एक ड्रग पेटेंट हो गया देन यू आर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. And that is high margin. That is higher margin in nature. See, both are different types of businesses and both are businesses. तो both businesses के pros and cons है. Generic CDMO में आपकी sales की certainty ज़्यादा है because those drugs are already popularized. Whereas innovator CDMO में आपकी sales की uncertainty है. कभी कभी होएगा 1 साल सप्लाई जाएगी फिर 3 साल सप्लाई नहीं है उस ड्रग की. Correct. Because it is going through that clinical trial and testing phase. तो अगेन इट इज रियली डिपेंडेंट कि किस टाइप का बिजनेस पढ़े. अगर आप पेटेंटेड CDMO पढ़ रहे हैं तो मार्जिन शुड जनरली बी हायर. EBITDA margin should be north of 24-25%. 24-25%. Okay, that's a good indicator to see because I know a lot of generic ones have very less margins, but they call themselves a CDMO, and it is correct, as you said, it is not wrong, but they want to show themselves as the other one so that their PE re-rates and gives a good premium. वो मतलब, time पे हुआ था. I think वो तो क्या कि investors should understand. Indian investors अभी should तो understand. Yes. chat GPT भी आ गया तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर कर सकते हैं because it can supplement your research, right? Yeah. If your basics are strong, so that's a godsend tool for anyone. So this is a good topic you touched upon GPT, right? Because I know you are also teaching people about how to use AI in stocks, right? So can you give one idea to them out of that? Because I know you have your entire workshop that you do. Right. But one very important thing that people should do with AI to help their learning curve in equity. मतलब I think I'll connect this to the framework. तो I'll give some examples. तो जैसे I think आज से 2 years पहले I started studying this company Zen Technologies. Yes.
right? Drone manufacturer. It's a drone. It's a company into simulators, Okay. anti-drone and drone. Okay. ड्रोन के भी इंडिजिनाइज पार्ट्स में अभी आए हैं, बट मेजर बल्क ऑफ द बिजनेस सिमुलेटर्स में था. अभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स में ऑर्डर मिल रहा है, एंड एंटी ड्रोन मार्केट इंडिया में बहुत ग्रो करने वाली है. इसका एक बड़ा सिंपल रीजन है कि आपको हर क्रिटिकल इंस्टॉलेशन पे गोइंग फॉरवर्ड यू नीड एंटी ड्रोन इक्विपमेंट. Okay. Okay. Oh yeah, because now every last warfare was completely drone driven. Right? How easy it has become to disrupt other countries' normal civic life. Just think about it. Yeah. आपको क्या करना है, 20-30 ड्रोन ही छोड़ने हैं. Right? So खत्म. cost of warfare has gone down. Correct. And you can Correct. cause more disruption. मतलब अगर आप देखो जो रेड सी का रूट है, एक तरीका इफेक्टिवली बंद ही हो गया था पीछे, बिकॉज जो हुतीज हैं दे स्टार्ट लीव, मतलब उन्होंने ड्रोन छोड़ने लग गए शिप्स के ऊपर, ड्रोन अटैक्स करने लग गए. सो इट्स द नीड ऑफ द आवर, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स एंड स्ट्रॉन्ग रडार्स. Yeah. रडार्स विच कैन कैप्चर की ड्रोन आ रहा है आपकी तरफ, राइट? Correct. तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए उसके लिए. Wow. पर अगर मैं जीपीटी यूज करूं इसकी रिसर्च करने के लिए, राइट, तो जीपीटी में बड़ा एक सिंपल रूल है कि आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, आपको रोल देना है और आपको प्रॉम्प्ट देना है. तो आई कॉल दिस द CRP फ्रेमवर्क, कॉन्टेक्स्ट, रोल एंड प्रॉम्प्ट. Okay. तो बड़ी सिंपल चीजें यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि इफ आई एम रिसर्चिंग अबाउट अ कंपनी, तो इट्स अबाउट कि जब आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि कंपटीशन कितना है इसमें, राइट? यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कंपेटिटिव एनालिसिस, देन यू फोकस कि टाइम कैसे इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, Correct. राइट? देन आप बेसिक एक फाइनेंशियल चेक तो करते हो, दैट एनी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव लर्नड दे कैन डू इट. देन यू कैन आल्सो गो मोर डिटेल्ड इनटू द प्रोडक्ट्स, right? कि if Zen is making a particular type of frequency of anti-drone system, and if some other company जैसे Axis Cades भी anti-drone system बना रही है, तो what is the difference between the anti-drone system being made by Zentech or Axis Cades? Correct. So that type of inference or answers you can get. Okay. Another way that you can do is that whether the management walks the talk or not. So this is something that we are developing at StockScans also. But StockScans is a tool that we have made. It gives you an idea about कि different stocks को scan कैसे करें, और मतलब ये हम उसमें एक AI का एक prompt feature ला रहे हैं. Okay. तो what does it do? आप GPT पे भी ये कर सकते हैं कि GPT पे जाइए, एंड जैसे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हर क्वार्टर के बाद होती हैं, जस्ट टेक द ट्रांसक्रिप्ट्स एंड लास्ट 7 to 8 ट्रांसक्रिप्ट्स उस पर डाल दो. मतलब जैसे अगर आज FY25 में अगर मैं Q2 Q4 की डाल दूंगा, FY24 की Q2 Q4 की डाल दूंगा, ऐसे करते करते लास्ट 4 years की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स अपलोड कर दूंगा. देन आई विल गिव अ प्रॉम्प्ट, अ रोल एंड अ कॉन्टेक्स्ट. तो रोल क्या है पहले कि आई विल गिव GPT अ रोल दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास इक्विटी एनालिस्ट हु स्पेशलाइजेस in detecting whether the management is walking the talk or not. तो ये तो हमने पहले रोल दे दिया. फिर कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि आई एम अटैचिंग द रिपोर्ट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी बिलो. दीज आर द कॉन्फ्रेंस कॉल्स दैट द कंपनी हैज डन ओवर द लास्ट 4 years, राइट? एंड प्रॉम्प्ट क्या आएगा? यू हैव टू मेक अ डिटेल्ड टेबल which depicts whether the management has walked the talk or not. You can use color coding or a ranking framework. Wow. तो आप कलर कोडिंग देंगे तो वो आपके सामने, और कलर कोडिंग में जस्ट राइट की ग्रीन, रेड और येलो कलर, राइट? wherever they have achieved the guidance, give a green color. Wherever they have missed the guidance, give a red color. Wherever they have somewhat achieved and somewhat missed, give a yellow color. तो वो green, yellow और red light framework में it will give you entire table with all the guidances of the last 8 those particular conference calls. And आपको एक idea लग जाएगा whether this management walks their talk or not. Wow. So that's also a wonderful usage of GPT, right? एक और बहुत wonderful usage of GPT क्या है कि a lot of people want to do forensic analysis. जैसे काफी लोगों ने जेनसॉल का जो केस स्टडी है, Correct. Actually, there are other companies also, but it's tough to name them right now. But एक साल बाद लोगों को पता लगेगा. But how do you know about, like, could you find Gensol का problem from GPT? GPT से तो आप एक प्रॉम्प्ट डाल के ढूंढ सकते हैं. वैसे तो आप अगर सिर्फ बैलेंस शीट ही देख लेते तो आपको प्रॉब्लम पता लग जाता है. एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, द डेट वाज एक्सप्लोडिंग, कैश फ्लोज वर नेगेटिव. करेक्ट. मतलब ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर किसी धंधे के कैश फ्लो नेगेटिव और डेट एक्सप्लोड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि द कंपनी इज बर्निंग कैश and it is dependent upon the lenders for the company to run. Correct. Right? See, cash flows are negative, I understand, but the debt should not be exploding. There should be cash on the balance sheet. Right?
कैश फ्लो कभी कभी नेगेटिव होता है जब आप हाइपर ग्रोथ स्टेज में होते हो, यू री इन्वेस्टिंग इनटू द वर्किंग कैपिटल, बट जनरली देयर हैज टू बी अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर द कैश फ्लो बिकम्स पॉजिटिव. अभी Correct. कई लोग कहते हैं कि हाइपर ग्रोथ कंपनी है तो कैश फ्लो नेगेटिव है. आई अंडरस्टैंड दैट, बट इफ द borrowings are also exploding, then you're running your business on the kindness of strangers. Yeah. What Yeah. happens if they pull the plug? And they will eventually. They will eventually. So they had 4-5 times debt to equity हो गया था आई थिंक इस कंपनी का. तो एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि यार अगर कोई भी 0.5 से ज्यादा डेट टू इक्विटी हो जाए तो यू शुड बी अ बिट मोर केयरफुल, Yeah. राइट. एंड बिकॉज द थिंग इज इक्विटी इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग टर्म. तो फिर आप डेट टू कैश फ्लोज देखो, अब कैश फ्लोज ही नहीं है, Correct. आप डेट कैसे सर्विस करोगे? Correct. तो आप कहीं और से लोन लोगे, Correct. राइट. एंड देन फिर कंपनी का बाहर एक फॉरेंसिक ऑडिट होके प्रॉब्लम्स आया कि आई थिंक प्रमोटर बॉट अ हाउस समवेयर XYZ इधर ही किधर गुड़गांव में कुछ करना है. कमिलियस. Camellias में. बट दैट इज मतलब वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एनालिस्ट वर्क है कि वो Yeah. चाहे कुछ भी करे. But if you look at the balance sheet of a company along with cash flows are negative, balance sheet debt is exploding. So many other stocks, 5,000 plus stocks, move to something else. इसलिए आपको वैसे GPT की जरूरत नहीं है. This is common sense. It's common sense. Right. Okay, this one more question I had when you had spoken about. So you had given me the journey of Newland. So you said it went up, then it corrected 40-50%. At that time you had exited. And same thing you said with MCX, also you exited. Now a lot of people in the market have this problem of exit. When do you exit? Is it a valuation based trigger? Because you said thesis also was fine in both cases. So was it like run up too fast? That's why you took an exit? Or was it a personal call that you took? How does a normal guy capture this? Because इसका फिर आदमी लोग का drawdown भी 40-50% हो जाता है. And nobody knows when to exit. Actually the thing is कि it's a equity का returns is lumpy in nature. Correct. चाहे आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करेंगे तो वो क्या है, बिजनेस मॉडल्स बन रहे होते हैं. सी नॉट एवरी कंपनी इज HDFC बैंक फ्रॉम डे वन, Correct. राइट. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. वन इज अ पैसिव स्ट्रक्चर, वन इज एन एक्टिव स्ट्रक्चर. Okay. पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपने शिप डाल दी पानी के अंदर तो शिप विल कीप फ्लोटिंग, राइट. एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है कि एक फाइटिंग जेट है, राइट. मतलब एकदम अपने F-16 हो गया, या फिर इंडिया का एक जो जेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ तेजस Mark 1 करके हो गया. अब इंडिया का अगर वो जेट है तेजस, अगर उसमें आप फ्यूल ना डालो तो जेट विल एंड अप क्रैशिंग, राइट. तो दैट्स एन एक्टिव स्ट्रक्चर. A fighter jet is an active structure. It always requires fuel, but it always requires to be active. Yeah. So it's not a passive structure like a ship. So I'll say कि जो small cap investing है और mid cap in like smaller mid cap investing है, that's a very active investing in nature. Fighter jet types. So if you get good returns, you should start booking profits as well. मतलब कभी कभी क्या होता है, some of the companies also go graduate to become mid caps or large caps. But this also involves a lot of risk management. Sometimes क्या होता है कि example देता हूँ आपको कि 2018-19 में आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों. तो मैं स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करता था. तो आई बॉट दिस कंपनी, एक APL अपोलो करके एक मतलब कंपनी वी यूज्ड टू हैव. एंड देन एक अल्काइल माइंस भी होता था, बट स्टॉक्स चलते ही नहीं थे यार. मतलब 12 से 18 महीने के लिए देयर वाज अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम करेक्शन. एंड टाइम करेक्शन भी ऐसी थी कि स्टॉक्स वर फ्लैट between that period. अभी जैसे इंडिया में भी 14 months की टाइम करेक्शन. Yeah, maybe flat ही है most of it. Yeah. But then you have to really focus on the underlying fundamentals of the business. Correct. Right, and then all of a sudden COVID came, COVID went, a lot of these stocks did well. But the thought process that one has to remember is that during such phases जो आते हैं, एक lull का जो phase होता है, sideways period का जो एक phase होता है, इसमें जब आप एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं तो देन यू आल्सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि यार ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा. सो दैट इज देयर बिकॉज़ यू आर सीइंग इट एवरी डे ऑलमोस्ट. मतलब आप चाहे वीक में देख लें, कुछ भी देख लें, आप सोचेंगे यार कोई अगर आपने एसेट क्लास में डाला तो अभी लोग क्या कहते हैं, गोल्ड सिल्वर ले लो. हाँ, बिकॉज़ देयर इज ऑलवेज वन रॉकेट फायरिंग एवरीवेयर. तो देयर इज अ रीसेंसी बायस आल्सो. करेक्ट. बट वन ऑफ द वेज टू डू अवे विद रीसेंसी बायस इज एसेट एलोकेशन. कि आपने यार कुछ इक्विटी कर लिया, कुछ आपने कमोडिटी कर लिया, कुछ आपने रीट्स या इन्वेट्स कर लिया. दैट एक्चुअली रीट्स इन्वेट्स हैव बीन फिनोमिनल आउट परफॉर्मर्स इन लास्ट 1 year. इफ समवन चेक्स तो क्योंकि रीट्स में टैक्सेशन चेंज हुआ है और इन्वेट्स में भी जब ये इंटरेस्ट रेट घटता है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है. क्योंकि जब DCF करते हैं उसका कि फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाले हैं, तो जब उसका इंटरेस्ट रेट घटता है तो आज की वैल्यू बढ़ जाती है उसका. करेक्ट. तो बहुत सारी तरीके हैं एसेट एलोकेशन करने के. तो दैट्स आई थिंक फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर अ मच सेनर वे टू डू स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग. बिकॉज अगर आप साइडवेज और बेरिश मूवमेंट्स इफ यू हेट, right, this is something you can offset it with. This is something that you can offset it with this via asset allocation.
because asset allocation becomes supremely important. But coming back to your question on profit booking and exits Yeah. and stuff, see, I think there are multiple ways to exit a stock. एक तो way of exiting a stock is a lot of people don't appreciate is opportunity cost. That you find something better. पैसा तो limited है. ऐसा तो नहीं कि there's a money tree, Yeah. right? Your portfolio is also limited. So one of the ways is opportunity cost, that you find something better risk reward type setup. Second way to exit a stock is that कि the fundamentals break down. Fundamentals break down कैसे होगा कि suppose करते हैं कि ये तो ऐसे बहुत extreme case study हो जाएगी, but suppose करते हैं कि जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का एग्जाम्पल है, अब 4 साल से देयर अ हैंगिंग स्वॉर्ड इज दैट कि सम टाइम और दी अदर मार्केट कपलिंग या फिर मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच हो सकता है, एमबीडी. तो कपलिंग के चक्कर में क्या आएगा, एक्सचेंज से ब्रोकरेज बन जाएगी एंड ऑल द ऑर्डर्स विल गेट कपल्ड एट अ मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो होएगा एक्सचेंज मैकेनिज्म उसके ऊपर, एंड IEX एंड अदर्स विल बिकम अ ब्रोकर. तो दैट्स अ थ्रेट टू द एंटायर बिजनेस मॉडल. करेक्ट. हो सकता है वो चेंज हो जाए. मतलब आई एम सेइंग कि जो भी ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, आई चेंज विद द चेंजिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. So you have to treat all these case study with a pinch of salt, because Of course. these are things which keep changing. हो सकता है change हो जाए, क्योंकि मैं उस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, because that's a phenomenal business. But there was this overhang, 4 years से overhang है, right? So one could have simply avoided such stories, right? Yeah. And अभी हो गया वो overhang, and then the And it stock played out. The correction. overhang Yeah. actually played out, right? Yeah. Now, Yeah. other story could play out in that similar business, but you have to track it with an open mind, because it's Correct. a small cap investing. Correct. Things can change. Correct. Very interesting. पर ऐसा अगर कोई ओवरहैंग आ जाए किसी कंपनी पे, तो रिस्क क्यों लेने का? हाँ, रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि 5000 स्टॉक्स हैं. सिंपल बात है. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया, उस पर ओवरहैंग आ गया, करेक्ट. अगर ओवरहैंग कुछ भी हो सकता है, लीगल रिलेटेड केस हो सकता है. अगर ओवरहैंग टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, अगर कोई रेगुलेशन चेंज होने वाली, जैसे डेल्टा कॉप का एग्जाम्पल था. अब आपको पता है कि GST का केस 4 साल से चल रहा है कंपनी पे. वो तो रेशियो आ गई था मार्केट कैप टू GST, क्योंकि 25 से 30,000 करोड़ का तो GST नोटिस आ गया था कंपनी को. ये बीच में बहुत लोग को आया था, पॉलीकैप को भी आया था बीच में. बहुत लोग. इनको ज्यादा आया था. तो जैसे पॉलीकैप का एक वन ऑफ था, क्योंकि आप इंडिया में फ्रैंकली बिजनेस देखेंगे केबल्स एंड वायर्स का, तो अगेन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ना, आपको इन इन्वेस्टिंग यू हैव टू बी स्मार्ट एंड डम एट द सेम टाइम. वाई डम एंड स्मार्ट? बिकॉज किसी ने सीमेंट लिया अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, केबल और वायर लिए हो, तो उनको पता है कैश का एक एलिमेंट होता है, ऑफ कोर्स, राइट? मतलब कई लोग, मतलब आपका जो डेबिट कार्ड है उससे ही पैसे निकाल के कैश दे रहे होते हैं. करेक्ट. कंपनी के पास 1500 करोड़ प्लस कैश पड़ा था बैलेंस शीट पे, एंड इफ यू पिक अप एनी एनुअल रिपोर्ट, देयर आर dime a dozen income tax cases or CGST or SGST case, but you have to think whether this can kill the company or not. If the answer is no, जैसे पॉलीकैप के केस में it was the market leader, and that couldn't kill the company. Correct. So this was, I think, a 18-month-old case study. Yes. Right? So पॉलीकैप, right? So again, that was कि आपको देखना है टेम्पररी रोड ब्लॉक क्या और परमानेंट रोड ब्लॉक. I remember a lot of retail audience, तभी ये न्यूज आया था, बहुत बड़ा हो गया था, and many people sold, the stock price fell down, but I think within 3 to 6 months recover भी हो गया था. It had come back. Mid-20s में आ गया था PE में. Correct. It's growing at 30%. So now I understood. So now you're saying that if it doesn't kill the company, then there is no point of you taking an exit on news based. And what happens, what doesn't kill me makes me stronger. Correct. And then it went back up, and now it's almost at all time high again. ऑल टाइम है. ऐसा सेकंड टाइम भी हुआ था पॉलीकैप में. अच्छा. जब आदित्य बिरला और इन सब ने कंपटीशन का, मतलब अगेन आई लुक्ड एट दिस केस स्टडी ट्वाइस. तो फर्स्ट केस स्टडी तो आई वाज एबल टू सक्सेसफुली थिंक अबाउट इट. सेकंड केस स्टडी मेरे फेलियर की केस स्टडी थी. ये आदित्य बिरला और अल्ट्राटेक का कंपटीशन आया, एंड दैट कंपटीशन इज सपोज्ड टू कम फ्रॉम FY30. करेक्ट. 2030. नेक्स्ट 3 साल तो कौन मार्केट खाएगा? तो आई थिंक पेंट्स वाला रेफरेंस लेके पब्लिक डर गया था. तो एक्चुअली में ये मेरा फेलियर केस स्टडी क्यों था, वो मेरे फ्रेमवर्क में फिट होता था. पहले वाले फ्रेमवर्क में तो मतलब luckily I was able to capture that thing. Yeah. But second time I failed to capture it. It again fell to mid-20s P. Yeah. Again there was an opportunity. Yeah. हाँ. But purpose क्या इसका बताने का कि अगर आप एक टेम्पररी और परमानेंट प्रॉब्लम के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ, there is nothing like it. So you also learn every day, and you learn from these case studies, and you become a student or a collector of these case studies. Beautiful. Because what happens, there is a pattern to all this madness. तो एक चार्ली मगर कहते हैं लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स. तो आप एक को लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स आपको फॉलो करना है. Okay.
क्यों लैटिस वर्क मेंटल मॉडल फॉलो करना है? बिकॉज ऐसी चीजें भी होंगी, राइट? एंड वंस दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, तो आपको अपने सक्सेसफुल केस स्टडीज तो याद है, बट आपको फेलियर भी याद रखने चाहिए, बिकॉज आप उसको रिपीट ना करो. टू फेल इज ओके, बट टू रिपीट अ फेलियर अगेन एंड अगेन इज नॉट ओके. Yeah. So coming to this, any failure that you've had in your investing journey that you've learned a lot from, as you said, from one of these mental models, something that you thought will play out but nahi hua, but you learnt it, and then something like that. काफी केस स्टडीज यार. Yeah. मैं तो कहता हूँ वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, Of course. एंड इट्स मिस्टेक्स शुड नॉट बी फेटल. Like you should survive the mistakes. Yes. Because if you survive, तो anyways जब भी trend change होता है, bull market आती है, you तो do अच्छा है well. मतलब. Yeah. Right, but in bear markets or sideways markets, you should not be making a lot of mistakes. So पहला mistake जो मेरा बहुत common mistake है, जो मतलब I think something to always remember also, is that in a lot of good cases, good businesses होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि एक स्टैग्नेंसी आ जाती है प्रॉफिट ग्रोथ में, अर्निंग्स Okay. ग्रोथ में कंपनीज की. तो वहां पे आपको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है वेदर दिस इज जस्ट अ ब्लिप इन द स्टोरी और इज इट समथिंग विच विल बिकम परमानेंट, कि कंपनी की ग्रोथ ही खत्म हो गई. तो काफी बारी प्री मेच्योर एग्जिट इज अ केस विच अ लॉट ऑफ टाइम्स आप स्मॉल मिड कैप स्पेस में यू स्टिल थिंक टू लुक एट इट कि यार मैंने प्री मेच्योरली ये कंपनी एग्जिट कर लिया, right? So that is something that happens. Yeah. It's very common for active investors. Yeah. Right? But I try to deal with this problem is by having as big a universe as possible. Okay. कि अच्छा यहाँ हो गया पर कहीं नहीं दूसरी जगह कैप्चर कर लिया, right? So that is one of the thought processes. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, because we are very valuation focused. Yeah. किसी कंपनी का अगर P multiple 70-80 चला गया, आपने बेच दिया, right? Because that's the valuation discipline. Yeah. और कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ और क्रेजी आ गया, 80-90-100% ग्रोथ आ गई. देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि द मल्टीपल स्टार्ट्स फॉलिंग. So you are a big proponent of PEG ratio, right? I have seen this in many of your videos that you say that we should capture P ratio with growth and not just P ratio standalone. Is that a good way? That's 100%, that's the correct way. आप P ratio standalone आइसोलेशन भी दे सकते, कभी कभी वन ऑफ होता है, कभी कभी ग्रोथ रेट्स नहीं होती उसके साथ. बट what is one has to remember as per my view is that कि sometimes the growth also surprises on the upper side. Yes. Yes. तो वहां पे कभी कभी if you do a premature exit, तो even though you have done really well in that stock, or you could have done even better. Correct. So this is a framework that I am consciously trying to develop so that I don't make this mistake. Time the exit as close to the real exit as possible. हाँ, मतलब आप perfectly टाइम नहीं कर सकते. Correct. पर अगर आपको वहां से भी जूस लग रहा है, देखिए स्टॉक की 2 साइकिल होती है. हम क्या कहते हैं, परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स. एक साइकिल होती है परसेप्शन की. अभी जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप इंडिया में अच्छा कर रहा है तो परसेप्शन की साइकिल उसकी अच्छा कर रही है. फिर एक होती है अर्निंग्स की साइकिल. अगर अर्निंग्स की साइकिल पीक आउट हो जाए तो परसेप्शन की साइकिल कभी ना कभी पीक आउट होगी. कभी कभी परसेप्शन पीक आउट हो जाएगा, फिर अर्निंग्स की साइकिल बाद में होगी. बट इफ द परसेप्शन साइकिल इज डूइंग वेल बट द अर्निंग साइकिल हैजंट पिक्ड आउट येट, डोंट सेल द स्टॉक. Understood. Because what happens is कि वो सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो जाते हैं. दे क्रिएट मैसिव प्रॉफिट पूल्स. P ratio is a misnomer at that point of time. And you have to look at कि अर्निंग्स की साइकिल कब पिक आउट करेगी. Because lot of times what happens कि 5 years की ग्रोथ डिस्काउंट होने लग जाती है. Correct. बट आपको इसमें ये भी याद रखना है कि when the valuation becomes stupid, जैसे ट्रेंड के केस में हुआ या डीमार्ट के केस के अंदर हुआ, right? Then when the valuation becomes extremely stupid, जहाँ पे 250 की पी मिल रही है, 250, yeah. 200 की पी मिल रही है, then any quarter of a growth slowdown is your exit. Yeah. You can't like overstay or welcome in that Yeah. type Then of you'll get setups. hit very hard. हाँ, मतलब हिट वेरी हार्ड क्या, फिर क्या होता है आप देखते हो यार 4 साल तो अच्छा करा, 1 साल हो सकता है ना करे, बट 1 साल में क्या होता है 50% और डाउन आ रहा है. Correct. फिर अगर आप डीमार्ट जैसा स्टॉक देखेंगे तो 2021 से लेके 2025 एंड में आ गया, जब 5 साल में कुछ नहीं हुआ. Correct. Because it listed only at 250, 290 कुछ ऐसा था, and then अभी भी 100 के आसपास कुछ था. अभी जब लिस्ट हुआ था तो 100 की पी था, बट इट वाज ग्रोइंग एट 60-70%. The PEG, हाँ. But it went to 250p, but the growth rate fell from 60-70% to mid-teens to high Wow. teens. Wow. तो in these type of setups, अगर आप कर रहे हैं quality investing, that is something that you have to do. That is all okay. But you have to look at the earning cycle. अगर earnings growth slow हो गई, तो पीटर लिंच ने अपनी बुक में एक बात रखी है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में, कह रहे उन्होंने लिखा कि the problem with a fast growing company is that 1 quarter of slow growth. Yeah. Because the moment it transitions from a fast growing company to a slow growth company,
that is where the story gets killed. Yeah. And it took me a lot of time to appreciate what he wrote. I read this originally in 2014. तो अभी 2014 में भी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ा, 2017 में भी पढ़ा, मतलब हर 2-3 साल में एक बार पढ़ते रहते हो ताकि रिफ्रेश रहता है. But this was one of his sayings which stuck with me because I can see this happening in a lot of case studies. Astral Polytechnic, Page Industries, DMart, Asian Paints. Then example of अभी जो हमने ट्रेंट की बात करी, ट्रेंट का ग्रोथ पहले 30-40% आता था, अभी कितना आ रहा है? 16-17%. Right? So you're slowing down with a higher base. Yeah. But you're not valued for a slow growth. As you said, the key word here was the story is lost. The story was the key word, right? Because लोगों ने story बना के रखा था trend का. Even though the 17-18% growth is not bad, but you're coming from a 40-50% and वो story थोड़ा breakdown हो रहा है लोगों के दिमाग में. Odds होते हैं ना ये. Yeah. मतलब actually if you think about odds, जैसे suppose करते हैं अगर लिवरपूल का मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, मैनचेस्टर यूनाइटेड बकवास टीम हो चुकी है. आई एम अ फॉलोअर ऑफ दैट. I like football. आई एम अ फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर बकवास हो चुकी है टीम, इसमें कोई डाउट नहीं है. नाउ इफ लिवरपूल इज इन द टॉप 2 in the league for the last 5-6 years, and if there's a betting that happens on who will win this match, तो odds तो लिवरपूल के फेवरेबल होंगे, बट पे ऑफ नहीं होगा उतना. Correct. राइट. एक्सीडेंटली यूनाइटेड जीत की तो पे ऑफ बहुत आ जाएगा आपको. Correct. तो ट्रेंट के केस में क्या था कि इट बिकेम द फेवरेट स्टॉक. Yeah. एवरीवन वांटेड ट्रेंट. So payoff was off. इट्स लाइक अ 10 year का सबको कंपाउंडर लगता था. बट देन ग्रोथ रेट स्लोड डाउन. Yeah. Now again I'm telling you this with a caveat कि I can change my mind on Yeah. any stock. We'll never know, something they'll start new and the growth rate might go up again. क्या Yeah. पता एक नया फॉर्मेट लेके आए वापस 40-50% ग्रोथ हो जाए. Correct. बट Correct. इस मार्केट कैप से लगता है कि अनलाइकली है कि इतनी ग्रोथ रेट आएगी आगे. But you still study these companies or you keep a track of these companies with an open mind. The only reason is because these are your businesses where they're like these managements have demonstrated over decades ki how a Yeah. business is built. Yeah. So you can never discount them. Correct. To always have an open mind. So I want to ask you one more question on themes, right? Because I think you've been covering quite a good amount of themes on the YouTube channel as well. So we'll talk about one theme. What is that one theme that you feel in India is very good? I mean, right now it's looking very good, and in the near future also it looks good. Some good theme that you really like personally. See, I think one theme नहीं है, multiple themes होंगे. हाँ तो let's talk about multiple themes. So multiple themes में जैसे financialization of savings is a very big theme. What in is India. this? What is financialization of savings? Financialization of savings क्या है कि सपोज करते हैं कि लाइक आप पहले बैंक एफडी में सेव कर रहे थे, आप बैंक सेविंग्स लाइक उसमें सेव करें सेविंग्स अकाउंट में. तो नाउ आई सी रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर अभी गोल्ड और सिल्वर की भी बात करते हैं तो लोग ईटीएफ की बात करते हैं. Correct. कोई फिजिकल गोल्ड लेके नहीं रखना चाह रहा. Correct. मतलब जो न्यू मतलब जो मिड 20s या अर्ली 30s में है, तो फिजिकल गोल्ड से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं ऑफ ईटीएफ्स. Correct. So that's a financialization of savings, क्योंकि आपको ETF लेने के लिए डीमैट खोलना पड़ेगा. Right? People talk about mutual funds, right? Thematic funds, SIP, index funds, financialization of savings. लोग IPO की बात करते हैं. IPO में पैसा कौन लगाते हैं? Domestic institutional investors. बहुत लगा रहे हैं. तो जो DIS पैसा लगाते हैं, तो DIS के म्यूचुअल फंड्स. Correct. राइट. अब IPO लाने वाला कौन है? इन्वेस्टमेंट बैंकर. तो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी उसका रोल प्ले करता है अपना. म्यूचुअल फंड्स भी अपना रोल प्ले करते हैं. राइट. एंड thirdly कंपनीज आल्सो गेट लिस्टेड. Even though I think IPO इस मार्केट में IPOs में लेना is the stupid thing because valuations become crazy. Then another thing जो financialization of savings में, once you're doing well in life, you have surplus money. What you do? You would sign up with a wealth management company. Correct. So that's again, wealth management company becomes a part of financialization of savings. Then what else happens is that कि आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो किसी ट्रेडिंग जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है तो कैसी जीरो दास साथ खुलेगा, या कोई मोतीलाल साथ खोल रहा है, कोई ग्रो साथ खोल रहा है, कोई जेएम के साथ खोल रहा है, या कोई एंजल वन के साथ खोल रहा है. सो दैट इज ऑल्सो व्हाट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. पर आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट खोला तो आपका जो डीमैट है CDSL या NSDL होगा, जहाँ पे आपके इट्स लाइक अ डिपॉजिटरी और अ डिजिटल लॉकर वेयर योर एसेट्स विल बी स्टोर्ड. राइट. तो वहां पे जब आपके एसेट्स स्टोर होने लगे हैं डिजिटल लॉकर के अंदर, तो व्हाट हैपेंस इज दैट CDSL या NSDL है, व्हाट इज देयर? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. देन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक स्टेटमेंट आती होगी यहाँ कैम्स से या के फिनटेक से. करेक्ट. राइट. बिकॉज कैम्स एंड के फिनटेक आर डूइंग कंपनी का सेक्रेटरी वाला काम. मतलब दे आर द सेक्रेटरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स. दे डील विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे कैलकुलेट द कमीशन, दे गिव ऑल द लाइक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग जो एक सेक्रेटरी करेगी. दैट इज व्हाट अ कैम्स और अ के फिनटेक विल डू फॉर अ म्यूचुअल फंड. That is what
financialization of savings. You think about the entire infrastructure. The exchanges also come right at the end. जब आप trade करने जा रहे हैं, if someone wants to buy a future of, let's say, कोई silvers का future ले, MCX पे लेगा. किसी को कोई स्टॉक लेना है BSE पे लेगा, किसी को FNO करना है BSE या NSE पे करेगा. Correct. राइट ऐसी 2 exchanges और आ रही है अभी. एक NCDX भी आ रहा है, एक और exchange भी है. बट द आइडिया इज दैट कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है. फिर आपके कस्टोडियंस भी आते हैं. तो जैसे जो लार्ज म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज AIF फंड्स होते हैं, तो आपके कस्टडी भी होती है एसेट्स की किसी के पास. राइट. तो वहां पे कौन आता है? कंपनीज लाइक नुवामा, कंपनीज लाइक ऑर्बिस करके कंपनी आती है. तो हम लिस्टेड आर्म में करता है और ऑर्बिस अनलिस्टेड में, मतलब अनलिस्टेड कंपनी अभी. बट थिंक हाउ बिग द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज. ई सिग्नेचर चाहिए. राइट. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का. भी स्मॉल केस में फंड रेज हुआ है. राइट. आपका भी स्मॉल केस है फॉर एग्जांपल. तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू हैव अ प्रोडक्ट वेयर a lot of you provide good research. Retail investors can have a basket of securities. Correct. But you don't want to make a direct website because it's a hassle. Correct. Right. And basket करना easy है. Correct. That is what an example. Financialization. उसमें e-signature, every customer has to do e-signature also. अब e-signature की भी कंपनीज हैं जो e-signature की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. Correct. Right. So if it's you huge मतलब because बैंक से जो पैसा है, मतलब जो लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, इवेंचुअली एज एन इकोनॉमी बिकम्स मोर फाइनेंशियलाइज्ड. जैसे यूएस का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्सेस है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज. इंडिया में आज 3% कंट्रीब्यूशन है. वाओ. और जिस हिसाब से इंडिया में डीपनिंग ऑफ इक्विटी मार्केट्स हो रही है या फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है, तो व्हाट विल इवेंचुअली हैपन इज दैट दिस नंबर विल आल्सो गो अप. करेक्ट. And at the end, government also benefits because of higher capital, because of higher collection of capital gain taxes. Correct. We also benefit because of wealth maximization impact. तो एक wealth impact भी हो जाता है. Suppose करते हैं आपने equity में पैसा कमाया, आपका portfolio 1 से 3 हो गया. Let's say over a 3-year cycle. तो people tend to buy more cars, people tend to buy more houses, people tend to spend more. मतलब it goes back in the system. मेरे जैसा आदमी तो नहीं करेगा. But this is some normal wealth effect. इसको wealth effect कहते हैं हम लोग. राइट. तो ये पूरा एक रीइंफोर्सिंग साइकिल है कि जैसे ये चीजें ज्यादा होंगी, कंपनीज माइट प्लान, लाइक इवन यूनिक कंपनीज माइट प्लान टू गेट लिस्टेड. आई हैव लुक्ड एट सम ऑफ द IPOs वेयर अ कंपनी मेक्स द पैराशूट का मटेरियल. जो पैराशूट आते हैं जो इंडियन मिलिट्री यूज करती है, उसका मटेरियल बनाती है कंपनी, एक ही कंपनी बनाती है. आई हैव लुक्ड एट एन IPO which the company which makes the stents of heart. Wow. So that's a company which has 25% of the entire country's market share in stents. Wow. I recently looked at a company which makes the fire integration protection system. तो आपको हर फैक्ट्री के अंदर अब एक फायर बेसिकली रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल सिस्टम चाहिए. क्योंकि क्या है कि अगर आपके उसी में एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, पाइपलाइंस है, तो इतनी तेज आग लगती है तो आप एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लेके जा सकते. तो इट हैज टू वर्क फ्रॉम द सिस्टम. नाउ गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी. ओनली वन कंपनी इज इनटू दैट टाइप ऑफ बिजनेस. राइट. तो अब ऐसी ऐसी यूनिक चीजें इंडिया में लिस्ट होने लग गई है कि इट माइट रिक्वायर लॉट मोर टाइम टू स्टडी दीज कंपनीज. बिकॉज आज से 5 साल पहले रिसाइकलिंग सेक्टर नहीं था फॉर एग्जाम्पल. आज से 5 साल पहले रिन्यूएबल सेक्टर नहीं था. 5 साल पहले CDMO सेक्टर नहीं था. 5 साल पहले डिफेंस सेक्टर नहीं था. 5 साल पहले ऐसी नीच बिजनेसेस नहीं थे जो आ रहे थे. राइट. तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इज अ मेगा थीम. इसमें सबसे बड़ी चीज तो हम भूल ही गए, AMCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज. फ्री कैश फ्लो प्लेयर्स. फ्री कैश फ्लो पे मैसिव बैरियर टू एंट्री. आपको AMC का लाइसेंस मिल गया, आपको लगता है इजी है स्केल करना? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है स्केल करना. सालों लग जाते हैं. इधर यू स्लॉग इट आउट विद 2-3 schemes और यू हैव अ मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन वाया बैंक्स. राइट. जैसे मतलब PPFS आई थिंक इज अ मिसनॉमर है. PPFS की भी शेयर्स अनलिस्टेड में ट्रेड करते हैं. आई थिंक दे डू 240-250 करोड़ पैट. बहुत ऊपर गया था रिसेंटली. अभी 10-11 हजार करोड़ शायद से मार्केट कैप चल रहा है. राइट. स्टार्ट फ्रॉम लाइक 3-4,000 crore मार्केट कैप. Because they have been very true to their ethos, one scheme, one product, and that is what they've done, and that is what, that's the ideal model. You can't. It's very difficult to stick to that model also. Because that's the Berkshire Hathaway model, right? That is what one should aim to replicate. But जैसा अब HDFC हो गया या फिर बाकी सारे funds हो गए, so they keep launching more and more NFOs. Thematic fund आ जाएगा, किसी का ETF आ जाएगा, किसी का कुछ आ जाएगा. बिकॉज एट द एंड दीज आर लिस्टेड कंपनीज, दे आल्सो हैव टू शो ग्रोथ. बट आल्सो इट लीड्स टू फाइनेंशियल इनोवेशन. कि आज इंडिया में ETFs की जो मार्केट है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, 3 years डाउन द लाइन ETF मार्केट इन इंडिया विल बी ह्यूज. जैसे US के अंदर हुआ है. मतलब US के अंदर यू कैन हैव एन AI ETF.
आपको नहीं करनी स्टॉक पिकिंग, आपको थीम पसंद है, AI ETF ले लो, Yeah, Mag 7 ETF. मैक्स 7 ETF कुछ भी है, कुछ भी yeah. ले लो। Yeah. एक आई थिंक हेल्थ केयर का भी ETF है जैसे। अब इंडिया में भी ये चीजें आनी चाहिए, because the thing is कि this is again financial innovation, but again it ties down to what? Financialization of savings. Correct. So that's a huge mega theme, and I think we just discovered the entire infrastructure or the value chain कि कैसे आप financialization of savings देख सकते हैं। एक तो ये थीम है। फिर दूसरा थीम जो मेरे को लगता है इंडिया में, that is manufacturing. एंड मैं डिफेंस हो गया, प्री इंजीनियर बिल्डिंग हो गया, केमिकल्स हो गया, फार्मा हो गया, हर चीज को मैं मैन्युफैक्चरिंग में डाल लूँ। एट द एंड ये सब मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। करेक्ट। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेंगे तो अगर हम डिफेंस में एग्जांपल लेंगे तो अब डिफेंस में क्या है कि आपने, अगर आप डिफेंस मिनिस्टर की बार बार सुनेंगे तो कह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है इंडिया का 4 टाइम्स यहाँ से, और एक्चुअली में इंडिया का एक्सपोर्ट 20 टाइम्स बढ़ गया लास्ट 6-7 ईयर्स में डिफेंस का। वाओ। इंडिया में जो प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इज इंक्रीजिंग इन द मिड टीन पेस। तो आप डिफेंस में देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 2-3 years a lot of new companies will get listed, right? So that is there कि अगर आप डिफेंस में ट्रेडिशनल वॉरफेयर और नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर में डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए जो भी अभी डिफेंस का स्पेंडिंग है दैट इज कंप्लीटली टेकन बाय द एयरफोर्स एंड द नेवी। करेक्ट। बिकॉज यू नीड अ गुड एरियल डिफेंस सिस्टम, एंड इंडिया में जो नेवी है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर अ पेनिनसुला कंट्री एंड वी हैव लेस इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज एज वेल, राइट? आवर नेवल एंटायर फोर्स, I think it's far higher than Pakistan, but because we have China as our neighbor, yeah, China will have the largest number of aircraft carriers in next couple of years. yeah, They already have the largest fleet of submarines. wow, Right? So to protect your strategic interests, तो इंडिया का I think 7500 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। तो आपके जो भी नेबर्स हैं, मतलब अभी कुछ नेबर्स के साथ बनती है, कुछ के साथ नहीं बनती, ज्यादातर नहीं बनती, कुछ के साथ बन भी जाती है। You need to reinforce that. yeah, अब आप जब री करते हैं तो भी क्या हो रहा है, 2 साइकिल ऑफ री है नेवी के अंदर। एक तो है कि न्यू शिप्स आ रही है, फिर क्या पुरानी शिप्स को अपग्रेड करना है, करेक्ट, क्योंकि हर जगह ड्रोन से डर लगता है, तो आपको रडार्स लगाने हैं। फिर यू हैव टू पुट एंटी ड्रोन सिस्टम्स आल्सो, देन यू हैव टू पुट द सरफेस गन्स आल्सो, करेक्ट, राइट? तो ऑल दोस थिंग्स हैव टू कम। तो एक अपग्रेड की साइकिल होगी और एक न्यू शिप्स की साइकिल होगी। पीपल थिंक कि डिफेंस हैज डन वेल इन 3-4 years. I'm telling you, just the start. it's not even started, yeah, and now we're doing export also. अभी इंडिया में इंडिजिनाइज कंटेंट ही 25-30% है। दिस नंबर हैज टू गो टू 70-80%. correct, वी आर जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग पे। Wow. इसमें साइकिल्स होंगी, कभी ऑर्डर मिलेंगे, कभी ऑर्डर नहीं मिलेंगे, बट यू ट्रैक दिस सेक्टर डिलीजेंटली, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्टर इज, और पहले तो जो सेक्टर का बैड पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल हैवी है, लॉन्ग डेटेड ऑर्डर साइकिल्स होती है, और जेस्टेशन पीरियड ऑर्डर मिलने का ज्यादा रहता है, एंड डिलेज भी होता है ना। हाँ, डिलेज भी होता है, डिलेज होते हैं। हाँ, ब्यूटी क्या है सेक्टर की कि अगर एक कंपनी है जो सिमुलेटर्स बना रही है, एक कंपनी है रडार्स बना रही है, एक कंपनी है जो बल्बाल्स बना रही है, एक कंपनी जो सुनार करके बना रही है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, एक कंपनी बेसिकली सैटकॉम्स के अंदर है, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि दैट वन प्रोडक्ट इटसेल्फ विल हैव अ 2000 crore market, and there'll be 1 or 2 companies, and that product market itself will be growing at 10-15%. correct, wow, तो lot of things, yeah, lot of things are there, right? अभी नई चीजें देखेंगे। अभी तो हम नेवी की बात करिए, अब एयरफोर्स में आप देखेंगे क्या आएगा। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम प्लेन्स इंडिजिनाइज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट? यू विल सी मोर एंड मोर नंबर ऑफ लाइक कंपनीज जो पुराने प्लेन्स को भी अपग्रेड करना है, फाइटिंग प्लेन्स को, तो उसमें दे विल बी न्यू रडार्स दैट विल बी रिक्वायर्ड, राइट? देन जस्ट नॉट दिस, एयरफोर्स में अगर आप साथ मिसाइल्स की बात करते हैं, तो जैसे इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, प्रिसिजन मिसाइल, राइट? तो अगेन ब्रह्मोस की प्रोडक्शन, उस पर प्रोपल्शन सिस्टम्स होंगे, उसमें लाइक एन नंबर ऑफ चीजें लगती हैं, देयर आर कंपनीज व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग दैट, राइट? तो इंटायर अगर आप किसी चीज को इकोसिस्टम से पकड़ेंगे ना, तो यू विल फाइंड द प्रॉफिटेबल पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन. अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द मार्केट, बट इन अ थीम दैट इज poised to do well over 4-5 years. You must track them, you must study them, because the thing is you can get an opportunity at any point of time. Most of the winners actually I had in the past was only because I studied the theme and the value chain well. एंड हो सकता है मैंने तब ना लिया हो, बट मैं 1-2 साल बाद जाके लेता हूँ जब थिंग्स में भी सेटल डाउन, थोड़ा सा होता है ना कि एक बारी जब यूफोरिया फेज आया उसके बाद इट डाइज डाउन. Sometimes अगर फर्स्ट स्टेज में लग गए तो नथिंग लाइक इट, बट वंस द यूफोरिया डाइज डाउन देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च अवेलेबल ऑन दोस कंपनीज. तो वहां पे देन यू कैन बिकम अ वेरी डिलिजेंट ट्रैकर. तो ये आपको मेरे को फाइनेंशियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग थीम, these are two themes which stand out. And third theme which I think is here, because आप तो बैंगलोर से हो, मैं दिल्ली से हूँ, tier 1 सिटी से जो भी है, that's the premiumization trend.
Yes, yes, this we've been noticing. Yeah. हर चीज का प्रीमियमाइजेशन. सी वी हैव गॉन टू $2,400-$2,500 पर कैपिटा इनकम. Yeah. लेट्स से 10 years में इनकम डबल हो जाती है, $5,000 पर कैपिटा हो जाती है. देखिए फर्स्ट थिंग होती है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. नाउ बियॉन्ड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर यू वांट गुड स्टफ. Yeah. गुड स्टफ क्या है? इट्स नॉट नेसेसरली बैड टू एस्पायर फॉर गुड स्टफ. दिस इज व्हाट लाइफ इज फॉर, कंजम्पशन, राइट? तो एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप ब्लिंकिट यूज करते हो. अब ब्लिंकिट पे, अगर ब्लिंकिट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल, पीपल हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग ग्रोसरीज वाया देयर मोबाइल. Convenience. Yeah. देन फॉर लाइक ऑन ब्लिंकिट इफ यू गो, तो पहले लोग दही खाते थे शायद से, फिर योगर्ट खाने लग गए, फिर ग्रीक योगर्ट खाने लग गए, अब प्रोटीन योगर्ट खाने लग गए. Correct. यू सीइंग दिस jumping of Yeah. premiumization. Yeah. People have become more healthcare conscious, Correct. right? पहले लोग चिप्स खाते थे, अब फॉक्स नट्स खाते हैं, मखाना, खाना खाते राइट? प्रोटीन बार्स खाते हैं, प्रोटीन चिप्स खाते हैं. हैं. पूरा ट्रेंड है. मतलब अगर आप, जैसे हमने पीछे वीडियो करा था जाइडस वेलनेस पे, Yeah. आई नेवर न्यू दे आर द ओनर्स ऑफ मैक्स प्रोटीन. Yeah, even I didn't know that. I saw your video and understood that they had the Max Protein brand. I didn't even know that. I knew sugar free, but I didn't know they were Max Protein. करेक्ट, दे acquired that company 1 year. And it's as you said, it was very fast growing segment in their business. So their sales have grown from 20 crores to 160 crores in last 4 years. Wow. अगेन कंपनी होल ट्रुथ अभी अनलिस्टेड स्पेस में है. होल ट्रुथ का 5 करोड़ का सेल 200 करोड़ का हो गया. अगले साल का फोकस 400 करोड़ का है, माँ कसम. राइट? Wow. सो दैट्स अ ट्रेंड. अब ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड सिर्फ यहाँ पे नहीं है. सबसे बड़ा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड तो है लिकर में, अल्कोहल. Yes. Yes, yes, yes. अल्कोहल में क्यों है प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड? पहले तो ये समझते हैं. As people start aspiring more, मतलब I don't drink तो I won't know, but I speak to people who drink. यार तो ये वाली क्यों पीता है? Right, so then what happens is that they start developing these tastes and preferences, and they think that's a sign of whatever well-being, या फिर दोस्तों के साथ महंगी वाली बड़ा, पीना. हाँ, महंगी वाली पीने जैसे भी है. पीऊंगा तो देसी पीऊंगा, लाइक पीऊंगा तो विदेशी पीऊंगा. सो दैट इज मतलब अगेन स्कॉच का ट्रेंड जैसे आप देखेंगे तो देयर हैव बीन कंपनीज इन इंडिया व्हिच हैव बीन sort of climbing up this value chain, Yeah. and they have started also launching Indian single malt, right? तो इंडियन सिंगल मॉल्ट का इंडिया से एक्सपोर्ट लास्ट 4 years में 8 times बढ़ा है. Wow. एंड एक्चुअली फॉर दीज कंपनीज इनमें कैटेगरीज होती हैं. एक होती है आपकी बिलो 500 रुपीज, फिर एक 500 to 800 रुपीज की है, फिर 800 to 1200 है, फिर 1200 to 2500 है, फिर है 2500 एंड अबव. तो इनका जो बिजनेस 1200 से ऊपर वाला है, वहां पे अगर 1% भी वॉल्यूम ग्रोथ होती है तो दैट इज 10x मोर प्रॉफिटेबल देन द एंटायर पोर्टफोलियो. Wow. Wow. तो आपका इकोनॉमिक इंसेंटिव भी है कि यार वहां पे ग्रोथ है, राइट? And someone who's having alcohol of 8 or 900 rupees, for them graduating to 1300-1400 rupees is not a big Difficult now. ask. Correct. But वो क्या हो गया? प्रीमियमाइजेशन हो गई, राइट? मतलब इसलिए आपने देखा होगा कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ अल्कोहल होती है. एक रेड लेबल होगी, फिर एक ब्लैक लेबल होगी, then there'll be a double black, there'll be a gold label, then there'll be a platinum reserve, and then there'll be a blue label. Correct. All these companies also understand there is a jumping of basically Also aspiration also कि मैं इधर से उधर जाऊंगा, उधर से और पीऊंगा, मतलब और बड़ा वाला ब्रांड पीऊंगा टाइप्स. राइट. सो दिस प्रीमियमाइजेशन इज अ ह्यूज ट्रेंड. अब ये प्रीमियमाइजेशन आपको रिटेल में, क्लोथिंग में भी दिखेगा, आपको यहाँ पे भी दिखेगा, वॉचेस में दिखेगा प्रीमियमाइजेशन. करेक्ट. राइट. कितने लोग, अभी आपने जैसे वॉच पहनी है, या मैंने फिर ये वूप पहना हुआ है, भी वूप मेरे को इतना दिखने लग गया लोगों के हाथ में, हाँ, राइट? एंड महंगा है वो. इट्स नॉट चीप आल्सो. सब्सक्रिप्शन इज चीपर देन अ वॉच. इट्स चीपर देन अ वॉच. इससे 20,000 रुपीज के साल. ओके. वो उसमें इंक्लूडेड, डिवाइस भी इंक्लूडेड है. ओके. समवनस वेयरिंग अ वॉच ऑफ 2-3 लाख रुपीज, बट दिस टेल्स यू योर हेल्थ. तो आपका प्रायोरिटी आपका हेल्थ, मतलब मैं तो सोचता हूँ ऐसे कि मैं प्रायोरिटी मेरा हेल्थ है, तो थोड़ा बहुत अगर एक SIP कम गई तो कुछ नहीं होता. शायद से टर्मिनल वैल्यू बढ़ जाएगी. वाओ. So that is how I think of it, because I मतलब मेरे को वॉच पहनने की आदत नहीं है शुरू से. बट अगेन रिगार्डलेस, तो वॉचेस का ट्रेंड, ये फिटनेस बैंड्स का ट्रेंड आज से 5 साल पहले कहाँ था? इतना कुछ नहीं था ये सब. अभी आप आज से 10 साल पहले थिंक अबाउट मैरिजेस, राइट? तो मैरिजेस में जो भी ग्रूम होता था, तो मतलब क्योंकि आप गिफ्ट शिफ्ट तो देखते हैं, तो यहाँ तो रेफ्रिजरेटर आता था, AC आता था, बट अब वॉच जरूर आती है. वॉच आती है, गाड़ी आती है. मतलब वॉच इज समथिंग दैट इज ऑलवेज देयर. क्योंकि अभी मैं 29-30 का हो गया, तो मेरे सारे दोस्तों की शादियां हो रही है. तो आप सब वॉच दे सब. मैं आई गो देयर एंड विजिट एंड आई सी, अच्छा मतलब इन सबको वॉचेस मिल रही है गिफ्ट में, राइट? वाओ.
तो Wow. अगेन दैट्स अ ट्रेंड. But also expensive watches. अभी वो भी ट्रेंड आ गया ना कि महंगा वॉचेस ज्यादा बिक रहा है. हाँ बिक ही रहा है, बट अगेन ये ट्रेंड है ना प्रीमियमाइजेशन. तो हम्म. आपको इथॉस के अगर आप नंबर देखोगे तो उनका एवरेज रियलाइजेशन 1,20,000 पर पीस था, अभी वो 2,50,000 पर पीस हो गया लास्ट 4 years में. तो इट्स नॉट कि ये सिर्फ स्टोरी है, बट ये डेटा में है. Right. बाहर आ रहा है आउटपुट. बाहर आ रहे. सिमिलरली ट्रैवल एंड टूरिज्म, यू हैव फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान है. But you want to experience, you want to maximize experiences of life. Yeah. Yes or no? Yeah. तो पहले साल की एक ट्रिप थी, फिर वो धीरे धीरे करके 6 महीने की एक ट्रिप हो गई. करेक्ट. अब वो करते करते 3 महीने की एक ट्रिप हो गई है. करेक्ट. फिर क्या है कि लॉन्ग वीकेंड आ गया, चलो कहीं पे. करेक्ट. 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 दैट्स हैपनिंग, राइट. पीपल ऑफ हम लोगों का जो डे एंड एज के जो लोग हैं आसपास, वो सब में आप ऑब्जर्व करते हैं, Yeah. राइट. Yeah. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. अगर टूरिज्म सेक्टर इंडिया में इज ऑल्सो इट्स लिंक टू द प्रीमियमाइजेशन वेव, आई थिंक टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया विल ऑल्सो डू रियली वेल. तो But don't you think premiumization is a very big It's a across broad the vertical? Yeah, very broad theme. some companies will capture it well, बट जहाँ पे कैप्चर वेल हो रहा है, आपको मार्जिन में देखेगा धीरे धीरे मार्जिन बढ़ते जाएंगे. बेस्ट एग्जाम्पल इसका पास से रैडिको खैतान का. Yeah, वो देखा था. प्रीमियम वोडका बेच रहा था and बहुत ऊपर चला गया उसका. देन दे स्टार्ट सेलिंग इंडियन सिंगल मॉल्ट, जैसलमेर जिन, जो उनकी बड़ी फेमस हो गई, राइट. तो पहले आप 8 PM बेचते थे, 400-500 रुपए की वो थी. अब आप 2-2, 2,500, 3-3 हजार रुपए की बॉटल्स बेच रहे हो. आपका एवरेज सेलिंग प्राइस हैज ग्रोन बाय मोर देन 2-3 times in last 4 years. So what will happen to your overall perception in the markets? Yeah. It's Slowly a becomes better. local Indian player, local Indian homegrown player, which is premiumizing the landscape. Wow. इंडिया में GLP ड्रग्स का सेल बहुत बढ़ रहा है इस टाइम. Yeah, I wanted to ask you this because I saw you tweeting about this also recently. इसका what do you think? Is it something? I know US में ये बहुत बड़ा हो चुका है अभी, तो that business is billions of billions 10% of adult population US में ले. in US, and now it's become a norm there. अभी वो they don't look at it in a bad sense. इंडिया में अभी भी वो cultural stigma है कि वो लिया है तो it's considered bad. But do you think this will become a very big mega trend in India, GLP-1? आई थिंक इसमें कुछ कल्चरल स्टिग्मा नहीं है. नहीं, अभी देसी कि अरे उसने वो तो GLP लिया तो गलत. आज के टाइम पे दे लुक एट इट दैट वे. इन US दे रन एड्स ऑन TV. I saw it that day. Someone who weighs 140-150 kgs, for them it's a lifesaver. It's better for him than being how he is right now. Yeah. I was reading case studies by the liver doctor on Twitter. He was giving case studies of some of his patients. Their self-esteem improves. They become fitter. They have lesser risk of heart disease. Correct. लेकिन वन ऑफ नॉर्म्स तो हर जगह आएंगे. वेन एवर समथिंग न्यू कम्स तो वो बहुत माइनॉरिटी केसेस तो होंगे कि यार किसी को 0.1% ऐसा हो गया. बट आई थिंक फॉर अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन इट कुड बी अ लाइफ सेवर. नो, सो इंडिया में वैल्यू चेन आ गया GLP का कि अभी बन रहा है वो वैल्यू चेन? इंडिया में ड्रग्स लॉन्च हो चुके हैं. इलाई लिली और नोवो नॉर्डिस्क के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. आई थिंक वन ऑफ द ड्रग्स हैज ऑलरेडी बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया. आई थिंक वो इलाई लिली का था शायद. इलाई लिली का था. Eli Lilly is now investing 8,000 crores into the Indian landscape. Manufacturing भी इधर होगी, right? And also contract manufacturers भी हैं इधर. फिर वो CDMO का पूरा थीम आ जाता है. Distributors होंगे इन products के, तो overall IPM growth rate बढ़ सकती है. तो distributors की growth rate बढ़ जाएगी इससे, right? But at the end also consumption patterns will change. Yeah. A person on GLP is likely to consume more protein than a person not on GLP. I heard about this. Because your muscle stagnates, muscle loss होता है. तो आप क्या है कि आप अगर आप फिटनेस की तरफ ओरिएंट हो चुके हैं, अब अगर आप इंजेक्शन लगाने का आपने सोच ही लिया है, तो आप कुछ सोच के कर रहे हैं कि यार आई हैव टू बिकम मोर कॉन्शियस इन लाइफ. Of course. तो फिर ये पूरा प्रोटीन वाला थीम आ जाता है जो हमने डिस्कस करा. Wow. So Ish, what is your take on the power theme in India? ये अभी बहुत चल रहा है मार्केट में and everyone's talking about it. I'm sure you mapped the entire ecosystem. तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है इधर? आई थिंक पावर थीम तो देखो एनर्जी ट्रांजिशन थीम है. अब एनर्जी ट्रांजिशन थीम में एक मतलब इट्स एन इंटरेस्टिंग थीम बिकॉज देयर आर कंपनीज विच आर इनटू रिन्यूएबल्स, देयर आर कंपनीज विच आर इनटू EPC, देयर आर कंपनीज विच आर इनटू एसेट डेवलपमेंट, देयर आर आल्सो कंपनीज विच आर इनटू ट्रांसमिशन. Then there are also companies which are exporting power equipment. For example, there's a company which exports the natural gas powered plant के लिए gas gensets from here. Yeah, there's also a company which manufactures the turbines and exports it from here, steam engine के turbines के लिए. पूरा थीम तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो पहले तो रिन्यूएबल की बात करते हैं. रिन्यूएबल में सोलर और विंड है.
तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर कुछ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पूरा इंटीग्रेटेड होंगे, एंड सब होंगे जो सिर्फ मॉड्यूल बना रहे हैं, एकदम कोई होएगा जो सेल से इंटीग्रेटेड है, पीछे पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स और इनगॉट्स में भी जा रहे हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। देन देयर आर कंपनीज इनटू विंड, जो कंपनीज हैं, 2 कंपनीज है विंड मिल्स बनाती हैं, फिर उनकी प्रॉक्सी कंपनीज है जो उनको वो प्रोवाइड करती हैं लाइक क्रेन सर्विसेज या फिर इंस्टॉलेशन सर्विसेज। फिर एक और कंपनी भी है विंड मिल में विच मेक्स द कास्टिंग ऑफ द विंड मिल की कास्टिंग के अंदर काम करती है। दैट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ सिनर्जी ग्रीन करके। तो विंड मिल बनाने वाली सुजलॉन और आइनॉक्स है, प्रॉक्सी के अंदर संघवी मूवर्स है, और ताराचंद इंफ्रा है जो इनको क्रेन्स और क्रेन रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। पहले वाले में जब हमने सोलर मॉड्यूल्स की बात करी तो लार्जेस्ट कैपेसिटी आई थिंक वारी एनर्जीज की होगी। फिर विक्रम सोलर भी और सेक्टर के अंदर प्रीमियर एनर्जीज भी है, तो प्रीमियर एनर्जी जैसे सोलर सेल पे भी बहुत फोकस्ड है। फिर एक कंपनी है जो प्योरली सेल पे फोकस्ड है, वो जुपिटर सोलर है, राइट। तो यहाँ पे अपना सोलर का ये हो गया, विंड का ये हो गया। तो दीज आर कंपनीज आर गेटिंग बिग ऑर्डर्स एंड पर यहाँ पे आपको मार्जिन ट्रैक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मार्जिन टूटते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अपनी कंपनीज आ गई जो सोलर जो पार्क डेवलपर्स हैं। तो अभी आपने क्या करा कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर कंपनीज व्हिच आर अपार्ट फ्रॉम यूटिलिटीज। तो ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, दे सेट अप द प्रोजेक्ट्स, they get the like orders, and then they dispatch the power and they earn revenues out of that, right? For example, Acme Solar है, तो Acme Solar is a company which is an IPP। तो अभी इस कंपनी ने क्या करा है कि इनका आई थिंक 1.9 गीगावाट्स का भी आई थिंक ओवरऑल कैपेसिटी अभी जो इनके पास लाइक पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, विच विल इंक्रीज बाय मोर 2.3 गीगावाट्स, तो इवेंचुअली 4.3 गीगावाट्स हो जाएगी। तो इस कंपनी के अंदर क्या है कि दे हैव द सोलर मतलब सोलर कैपेसिटी, मतलब सोलर पावर पार्क्स लगे हुए हैं, पर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में भी आ गए। तो दे हैव रिसेंटली डन टाई-अप्स टू मेक जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ पूरा हाइब्रिड लाइक प्रोजेक्ट होएगा जिसमें सोलर, विंड एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होएगा। बिकॉज BESS तब चाहिए क्योंकि सोलर और विंड एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे में चलता है। जैसे सपोज करते हैं कि अगर दिल्ली में गर्मी है, राइट, तो दिन में तो एसी चला, बट पीक डिमांड है रात को, जब एसी चलेगा ही चलेगा, राइट। तो अगर पीक डिमांड रात को है, सोलर तो दिन में प्रोड्यूसर है, वो 5 घंटे का उसका साइकिल है जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सोलर प्राइसेस कोलैप्स ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज इतना डिमांड नहीं है। बट रात को क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज BESS, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो एक्मे सोलर का देखेंगे तो डेवलपमेंट में उन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी बहुत बड़ा ऑर्डर दिया अभी चाइना में, बिकॉज दे आर पुटिंग दैट ऑल्सो इन इंडिया, बिकॉज दे हैव टेकन अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हमारे डेवलपर्स हो गए, एक्मे सोलर है इसमें, देन इसमें फिर EPC में जब आते हैं तो एक्मे सोलर EPC में भी है सोलर के, देन उसमें कंपनी आती है वारी RT करके, जो वारी एनर्जीज का EPC आर्म है। देन इसमें फिर स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये सारी कंपनीज भी आती हैं। बट EPC में ध्यान क्या रखना है कि अब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देन क्या है कि अब सोलर वोलर लग गया। अब सोलर तो मतलब अगर आप बैंगलोर रहते हैं, बैंगलोर में तो इंसान के लिए चलने के लिए जगह नहीं है, करेक्ट, राइट। सोलर फार्म, तो सोलर फार्म कैसे लगाओगे आप? तो यू हैव टू पुट इट इन द आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स में लगाओगे तो इवैक्यूएट और ट्रांसमिट भी तो करके लाओगे शहर तक, राइट। तो देन यू नीड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड टावर्स, यू नीड कंडक्टर्स, यू नीड केबल्स, यू नीड ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। एंड ट्रांसफॉर्मर का तो डिमांड और भी बढ़ेगा, क्योंकि अब पहले तो था कि आपने पावर इवैक्यूएट करी तो पावर ट्रांसफॉर्मर का डिमांड आया। देन आपने पावर जब आगे भेजी तो डिस्ट्रीब्यूट तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर्स विच आर बेसिकली यूज इन स्टेप डाउन, वहां पे डिमांड आया। फिर लोकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिमांड आया। पर अब क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी लग रहे हैं, तो BESS तक पावर को भेजने के लिए भी अब आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए होगा। वाओ, ओके। तो जहां जहां पे भी पावर ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, वहां पे ट्रांसफॉर्मर चाहिए। वाओ, राइट। फिर ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू चेन आ जाती है। कुछ कंपनियां जो बुशेस बनाती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो उसके CGRO को कोर्स बनाती है, कुछ कंपनियां जो इंटीग्रेटेड है, कोई पावर ट्रांसफॉर्मर में होगी, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में होगी। सो दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। देन ट्रांसमिशन से अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें केबल्स एंड वायर्स भी वैसे आ गया। सो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स भी वैसे पावर इक्विपमेंट का एग्जांपल है। पावर इक्विपमेंट में कंपनी है जो हाई वोल्टेज, बेसिकली जो HVDC है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में काम कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में 3-4 कंपनीज के पास, एक सीमेंस एनर्जी, एक GE Vernova और एक हिटाची एनर्जी, और इनमें एक इक्विपमेंट प्रोवाइडर है क्वालिटी पावर करके, विच प्रोवाइड्स अ फैक्ट सिस्टम, जो अभी लिस्ट हुआ था, जो थोड़े टाइम पहले लिस्ट हुआ। तो वो भी हमारी एक पार्ट ऑफ द अनदर वैल्यू चेन होगी। फिर इसमें US के अंदर क्या हो रहा है कि US में सोलर के प्रोजेक्ट्स बहुत कैंसिल हो रहे हैं अभी, एंड नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स पे बहुत फोकस बढ़ रहा है, क्योंकि डेटा सेंटर्स को 24 आवर्स पावर चाहिए, मतलब एकदम अनइंटरप्टेड।
तो वहां पे भी क्या हो रहा है, BESS तो बढ़ेगा यूएस में, बट वहां पे टू प्लग द टेम्पररी गैप, तो नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स की बहुत बड़े बड़े वहां पे 85 लाइक प्लांट्स आ रहे। तो जो भी स्टारगेट प्रोजेक्ट कर चैट जीपीटी ने वहां पे, ओपन एआई ने $500 बिलियन का केपेक्स कमिटेड है फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, तो वहां पे बहुत बड़ा 360 मेगावाट का नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट लग रहा है। नाउ टू पावर दोज नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स यू नीड टू थिंग्स, एक तो गैस जेनसेट्स चाहिए एंड यू नीड टर्बाइन्स, राइट। तो गैस जेनसेट्स में यू बी सरप्राइज कि एक इंडियन कंपनी है TD Power, which is exporting to the European OEMs, which in turn export the entire solution to the American companies. But that is also a part of energy transition, because आप पहले कोल जला रहे थे या थर्मल पावर प्लांट्स कर रहे थे, अब आप नेचुरल गैस पावर प्लांट्स कर रहे हैं, और उसके साथ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भी आ रही है, that will also be not as polluting as coal. Interesting. So this is the entire landscape. Now you pick your वो कि आपको कहाँ पिक करना है, कहाँ पे जाके आपको लाइक यू कैन लुक एट थिंग्स। जैसे मेरे को लगता है पावर इक्विपमेंट कंपनीज इज समवेयर वन कैन लुक एट like a proxy. लाइक अ प्रॉक्सी टू इट। मतलब डेटा सेंटर का भी प्रॉक्सी हो गया ना पावर इक्विपमेंट कंपनीज, क्योंकि डेटा सेंटर से तो AI इज पावर इंटेंसिव, पावर अगर इक्विपमेंट जाएंगे तो दैट्स अ प्रॉक्सी। EPC शायद कुड बी अ प्रॉक्सी, बट EPC में मार्जिन्स यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। देन सोलर इज अ कमोडिटाइज्ड स्पेस, बट वहां पे कुछ कंपनीज है जब भी मार्जिन 1-2 साल हाई रहेंगे, बट अंटिल अनलेस दे ट्रांजिशन इनटू एन एंटायर थीम ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे आप वैल्यू चेन, हाँ जैसे वारी का एग्जांपल देखेंगे, वो सोलर कंपनी नहीं रहेगी, तो वो लोग हाइड्रोजन में भी जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स में भी जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में भी जा रहे हैं, सोलर इन्वर्टर्स में भी जा रहे हैं, सोलर इन्वर्टर की बहुत डिमांड बढ़ रही है, राइट। तो अगेन दे आर बिकमिंग एन एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी। EPC के अंदर भी हैं, दे ऑल्सो हैव लाइक देयर ओन बेसिकली ओन डेवलपमेंट पार्क्स ऑल्सो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी जा रहे हैं। तो वो एक ट्रांजिशन करके एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी बन रही है, वो सिर्फ एक मॉड्यूल कंपनी नहीं रहेगी, बिकॉज एट द एंड मॉड्यूल्स तो कमोडिटाइज हो रहे हैं और हो जाएंगे, राइट। तो आप कहीं ना कहीं से तो आपको मार्जिन कमाना पड़ेगा। Interesting. So that's the thought process, but this is how the entire value chain and the ball game is in this space. So what is your take on US? Are you seeing some interesting take happening there? तो US से related, I think US में तो markets have been on steroids because of AI. And AI का अगर आप overall cumulative spending देखते हैं, जो Google, Microsoft, Amazon or the Mag 7 companies are doing, or the Meta is doing, it will be close to $800 billion committed capex. Huge, it's huge. Yeah, it's huge. You think about. अब इतना बड़ा जब आप कैपेक्स कर रहे हो, तो द थिंग इज कि देयर इज आल्सो बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री क्या है कि कोई छोटी कंपनी नहीं कर सकती अब, करेक्ट, राइट। सेकंड क्या है, यू नीड कंप्यूट कैपेसिटी, आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। तो डेटा सेंटर डेवलपर्स लाइक ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, दे आई थिंक दे हैव द सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। तो इट्स आल्सो लिस्टेड कंपनी ब्रुकफील्ड कॉर्प, राइट। तो दे आर डूइंग अभी $5 बिलियन का तो एक ही कंपनी के लिए केपेक्स कर रहे हैं, राइट। देन यूएस में भी पावर की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज यूएस में तो रेजिडेंशियल पावर प्राइसेस हैव स्टार्टेड राइजिंग बिकॉज ऑफ AI पावर नीड्स इन सम ऑफ द लोकेलिटीज जहाँ पे डेटा सेंटर्स लग रहे हैं। जैसे आयरलैंड का एग्जाम्पल है, आयरलैंड के अंदर जो पूरा कंट्री का nearly 20 to 25% of the power is now being consumed by data centers because it's power intensive. Yeah. Similarly, US में भी सेम ट्रेंड चल रहा है। पर अगर आप और प्रॉक्सीज में आते हैं कि AI के प्रॉक्सीज क्या है, अब क्या आएगा कि पहले तो ये अपस्ट्रीम है कि डेटा सेंटर्स लगेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लाइक LLM सॉफ्टवेयर बनेंगे एंड ये सारी चीज होगी। फिर डाउनस्ट्रीम क्या है, इसकी एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट 2-3 years। दैट इज वेयर बिग विनर्स विल गेट मेड बिकॉज दीज बिजनेसेस वोंट बी एसेट हैवी। अभी गूगल, मेटा ये सब क्यों इतना इन्वेस्ट करे अपस्ट्रीम के अंदर, बिकॉज दे नो डेटा इज द न्यू ऑयल, राइट। So these companies themselves will start integrating downstream into the applications. So they will create their own applications and make it huge margin business. Right. That's the thought process. That's the ball game. This is why no one wants to lose the AI race. Correct. Right? Correct. But बहुत और भी कंपनीज आ रही है जो AI एप्लीकेशंस में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएस में एक एक्सॉन करके कंपनी है, तो दे आर द इनोवेटर्स ऑफ दिस थिंग, टेजर्स। Okay. The one you tase people? They have the patent on the word tasers. Okay. And they have the patent on the product. अब यूएस में पुलिस डिपार्टमेंट का काम बहुत है, बिकॉज यूएस में रेशियल क्राइम्स कह सकते हैं, रेशियल अब्यूज, ये सारी चीजें बहुत यूएस में अभी मतलब काफी ज्यादा, मतलब इन चीजों का नेशनल न्यूज बन जाता है। तो पुलिस ऑल्सो हैज टू वेयर अ कैमरा थ्रू आउट द डे। करेक्ट, बॉडी कैम। तो बॉडी कैम इज रिकॉर्डेड।
बॉडी कैम जब रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें एआई का यूसेज हो रहा है सॉफ्टवेयर का टू राइट डाउन द रिपोर्ट व्हाट द ऑफिसर इज डूइंग. Oh my God. राइट. तो अभी फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है दैट इज अ ड्रोन इज गोइंग इन यूएस इन सम ऑफ द केसेस व्हिच आर नॉट सो ट्रिवियल. राइट. तो पूरा कंपनी कौन प्रोवाइड करी? एक्सॉन. राइट. तो दैट्स एन एप्लीकेशन. अनदर एग्जांपल इवॉल्व टेक्नोलॉजीज. तो अभी देखा सबसे पहले एयरपोर्ट में जाते सबसे इरिटेटिंग चीज क्या लगती है? सिक्योरिटी चेक. राइट. बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. Correct. तो देयर इज अ कंपनी इवॉल्व टेक करके, जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे एयरपोर्ट इंस्टॉलेशंस हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि एआई को यूज करके दे मेड 100% फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर विच डजंट नीड मैनुअल फ्रिस्किंग. इफ अ पर्सन गोज थ्रू इट कैन टेल कि इस बंदे पास क्या है. Oh my God. दैट्स एन एग्जाम्पल. तो दैट्स अ सॉफ्टवेयर, दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एआई. तो ऐसी ऐसी आप एप्लीकेशन डाउन स्ट्रीम में और देखेंगे. अनदर एग्जाम्पल आई थिंक एक रॉकेट कॉर्पोरेशन या रॉकेट इंडस्ट्रीज करके, नॉट द स्पेस वन बट द कंपनी विच जस्ट फाइनेंस अंडरराइटिंग यूजिंग एआई. Because underwriting is the biggest task. Now that company using AI has started doing really well. They have started scaling that business like anything. Wow. फिर ये सब AI की हम बात करते हैं, आपको क्या चाहिए? मेमोरी चिप्स. Correct. क्योंकि अभी आप इंडोनेशिया जाना चाहते हैं तो आपको होटल बुक करना है बाली में. बट आप चाहते हो कि यार एक एजेंडे के AI हो, आपके फोन में सिरी हो. दिस विल हैपन 2-3 years down the line. It will have your credit card. It will have access to your OTP. It will have access to your preferences. And you can only tell it कि मेरे को किस टाइप का चाहिए. Correct. तो वर्ल्ड में जो OTAs हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स लाइक बुकिंग होल्डिंग्स एंड ये सब, they have derated massively Okay. because LLMs will start launching all these things. आप परप्लेक्सिटी एंड जीपीटी से कुछ टाइम बाद अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म बुकिंग करा सकते हैं. Correct. दैट इज समथिंग दैट कैन हैपन. तो नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपके डिवाइस पे इन्फ्लुएंस होने लग गया बिकॉज इट नीड्स मोर मेमोरी. तो पहले था कि इन्फ्लुएंस विल हैपन ओवर क्लाउड, बट नाउ इफ द इन्फ्लुएंस हैपेंस ओवर योर डिवाइस सो यू नीड मोर मेमोरी. तो इसमें HBM चिप्स आती है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स. वर्ल्ड में 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके, माइक्रॉन, SK Hynix, सैमसंग. तो माइक्रॉन एंड SK Hynix हैव टेकन लीड इन दीज AI related applications. These companies are booked for next multiple years now. Wow. तो दैट्स अ प्रॉक्सी टू द एप्लीकेशन ऑफ AI. Yeah. तो हमने प्रॉक्सी का भी प्रॉक्सी ढूंढ लिया. Wow. दिस इज हाउ द एंटायर वैल्यू चेन इज. एंड अभी इस वैल्यू चेन में एक सेमीकंडक्टर का भी वैल्यू चेन है, बट अगर हम उसमें गए तो आई नीड 1 hour सेपरेट. तो वी हैव मेड अ वीडियो ऑन अ चैनल ऑफ टू ऑलमोस्ट 2 hours on semiconductor value. Semiconductor. I'll link it in the description as well for people to watch. Wow. Wow. Well, this is crazy, Manish. I think we've covered a lot of topics today, and we've gone through very, very, very deep insights into a lot of things. So again, first of all, thank you for all of this. Last thing I want to ask you is, for people who want to learn, any books you recommend? Because I know you read a lot of books, and I know you have a lot of books in your study as well. एक या दो books that you feel recently that you have read कि पढ़ना चाहिए. Not the typical ones. I think that everyone has heard. Something that is different that you recently read, आपको बहुत अच्छा लगा. आई थिंक नॉन इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग भी बुक चलेगा. तो हमने बहुत बारी बात करी. Psychology ना, मतलब it is about your psychology. आप बोलो. एक तो यार आई सजेस्ट रीड दिस बुक हाउ एशिया वर्क्स. How Asia Works. जो स्टडवेल. तो इंडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, चाइना, right, Malaysia, all these countries got independence at a similar period of time. Japan, Taiwan. Why the countries had different outcomes. Interesting. How Asia Works. Okay. Next one. Phenomenal book. And then you'll understand कि ये सब infant industry protection के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्यों लगा रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे. Okay, because they've suffered there in those countries little bit. No, the thing is कि अगर आपको किसी सेक्टर, किसी इंडस्ट्री को बढ़ाना है इंडिया में, तो आपको उसको लोकल प्रॉफिट पूल तो बनाना देना पड़ेगा. करेक्ट. मैन्युफैक्चरिंग तो बंदा बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि क्या आएगा, आपने चालू करा, चाइना से 60% चीपर आ गया माल. करेक्ट. राइट. तो लोकल प्रॉफिट पूल बनेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, तभी तो एक्सपोर्ट हाउस बन पाएगा. स्मार्ट. स्मार्ट. तो अगर आप साउथ कोरिया का एग्जांपल देखेंगे, Hyundai, POSCO, इवन SK Hynix, राइट, सैमसंग, ये सारी कंपनीज कैसे बनी? करेक्ट. पहले लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करा, बोला कि आप पैसा कमाओ इधर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आओ, एक्सपोर्ट करो. एक्सपोर्ट. चाइना भी तो यही हो रहा है. या चाइना तो ये पहले से मतलब द क्लोज्ड लूप सिस्टम है उनका. They work on a 100-year plan. Yeah. They're very far ahead. Very far ahead. Wow. Any other book apart from this? I'll suggest another one is Prisoners of Geography. Prisoners of Geography. Oh, interesting book. Okay. Because एक तुमने ये सीख ली how Asia works, फिर Prisoners of Geography की हो, because whatever you do, you can't change your geographical neighbor. Correct. Right? Yeah. पूरा जो डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स का थीम है मॉडर्न वर्ल्ड में,
इसका लेटेस्ट एडिशन पढ़ना which is updated till 2025 because it will give you a deep insight in how the modern world is evolving. Interesting. This is less non-investing related, but maybe you will find investing ideas also because critical supply chains will get localized. Got it. सारी कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग की क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि इट्स अ हार्ड एसेट. सॉफ्टवेयर फिर भी किसी कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, पर अगर आपके पास मिसाइल बनाने का प्लांट ही नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पावर? करेक्ट. वाओ. राइट. जैसे अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप में आज आर्टिलरी शेल्स बनाने की कैपेसिटी नहीं है. तो यूक्रेन रशिया जो वॉर हो रही है तो इट विल टेक देम 10 years जस्ट टू रिप्लेनिश द स्टॉक दैट दे हैव गिवन टू यूक्रेन वाओ. बिकॉज दे डोंट हैव मैन्युफैक्चरिंग. Yeah. That's then you what happens, then you are dependent upon the kindness of strangers. इसलिए आप देखेंगे नेटो हो गया या यूरोप हो गया, they're always dependent on US. कि वो कुछ भी कह देंगे हम लोग मान जाएंगे. Yeah. Wow. So in a modern world, these things, these two books will give you a very good mental roadmap of what is happening. And another book which I'll suggest is Chip Wars. तो जो भी सेमीकंडक्टर में चल रहा है इस टाइम पे, तो Chip Wars is a fantastic book because it's such a complicated supply chain कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए सेमीकंडक्टर्स पे. I'll get this. Chip Wars. Actually एक और बोनस recommendation देता है, Material World. हाँ. Okay. Right, so material world, like materials like sand, steel, right? So copper, commodities and all of जो that. commodities हैं, कितनी बेसिक चीज है, बट हर चीज में मतलब हम जिस रूम में बैठे हुए हैं यहीं पे कॉपर से लेके स्टील से लेके सैंड से लेके कुछ ना कुछ किसी चीज का प्रोडक्ट होएगा. तो यू मस्ट थिंक कि ये सब की माइनिंग कैसे होती है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, उसकी क्यों बात हो रही है. तो यू नीड टू डेवलप अ होलिस्टिक माइंडसेट एज अ इंडिविजुअल ओनली बिफोर यू, मतलब इन्वेस्टिंग तो आप कर सकते हैं, बट एक होलिस्टिक माइंडसेट डेवलप करने में these things can really help you. Wow. Awesome. I think Ish, again, thanks a lot, man, for this. I think this was just huge amount of information, and I'll try for the audience to put as much details and documents what he's mentioned, which is the books, the videos. I'll put all of that in the links. If you have some reports also you can share, which you have shared to the public, I will share it with them as well. Okay. Yeah, but again, thanks a lot, man, Ish. I think I'll just end on this note. Yeah. Is that because currently we've been in a sideways market for last 14 months now. Yes. So I'll just encourage all the investors, young investors, experienced investors. This is not a period to get disheartened because markets always test you before they reward you. So have a good control over your EQ. Sometimes what happens, the stocks that you've picked are the right ones. But sometimes there's no movement because the markets are flat. Yeah. Whenever the perception turns, you will be ready. So just don't get disheartened and keep working and be a learning machine. Awesome. Thank you, man. Thank you, Ish. And thank you guys for watching this podcast till the end. A big shout out to Ish for giving so much information out to you guys, as he always does. So that is something that is very beautiful about him. Again, thank you all for watching this. Take care. See you guys. Bye-bye.